Good morning, students. I am Professor Aarti Prasad, Department of Electrical and Electronics Engineering, SIRT Bhopal. This is the Digital Electronic Logic Design subject, and the subject code is the EX403, and the topic is K-map. That full form is Karnaugh map. So let me discuss the Karnaugh map. What is Karnaugh map? This is the introduction of Karnaugh map. K-map, also known as the Karnaugh map, is a method to simplify of a Boolean algebra expression. It reduces the need for extensive calculation by taking advantage of human pattern recognition capability, and the required Boolean results are transferred from one table onto a two-dimensional grid where the cells are ordered in a gray code, and each cell composition represents one combination of input conditions, while each cell's values represent the corresponding output values, right? And these terms can be used to write a minimal Boolean expression representing the required logic, right? So it required Boolean results are transferred from a truth table onto a two-dimensional grid where in K-map, the cells are ordered in gray grid, and each cell position represents one combination of uh, input condition, and they are used to simplify real world logic requirements so that they can be implemented using a minimum number of logic gates. Some rules are there. K-map rules of simplification. K-map को simplify करने के लिए 8 rules होते हैं. First one is the K-map uses the following rules for the simplification of the expression by grouping together adjacent cell containing ones, right? तो इसके 8 rules होते हैं जो मैं one by one आपको डिस्कवर चीजें क्लियर कर रही हूँ कि क्या चीजें होती है. First one is the group may not include any cell containing zero. Means कि किसी भी ग्रुप में जीरो टर्म नहीं होना चाहिए. हम जब भी ग्रुपिंग करेंगे उसमें हमें जीरो नहीं होना चाहिए, केवल उस ग्रुप में 1 1 होना चाहिए. सो फर्स्ट वन इज दी ग्रुप में नो इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग अ जीरो. इट मीन्स कि हमारा एक भी जीरो नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज ग्रुप में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल. हमारा जो भी इस टेबल में है या तो फिर वर्टिकल होगा ग्रुपिंग और या फिर हम लेंगे उसका हॉरिजॉन्टल, बट हम इस तरीके से डायगोनल ग्रुप कभी नहीं करेंगे. तो ग्रुपिंग करने का भी एक मेथड है कि आप कभी भी ग्रुपिंग करें तो यू टेक ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन, नॉट अ डायगोनल, राइट? नेक्स्ट इज third one is group must contain 1 2 4 8 or in general 2 power n cells. That is, if n is equal to 1, a group will contain 2 ones, since 2 power 1 is equal to 2. If n is equal to 2, so that means if n is equal to 2, so group will contain 4 ones, right? Because 2 power 2 is 4. So this is the rule number third. When you take this, some examples are there. अगर हमने ये फर्स्ट ब्लॉक लिया तो इसमें हमने देखा कि इसमें कितने ग्रुप्स बन रहे हैं 2. जब हम लेते हैं n की पावर 1 तो हमारे 2 वंस यहाँ पे आ जाते हैं, राइट? अगर हमने लिया 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 वंस आएंगे हमारे यहाँ पे, राइट? तो ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ 2 और ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ 4. ओके, और हम कभी भी ग्रुप ऑफ 3 कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही ग्रुप ऑफ 5 कंसीडर करेंगे, राइट? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो क्या है, 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर n सेल्स. यानी n is equal to, when n is equal to 1, then you have group of 2. When you take
n is equal to 2, so you have group of 4, right? So this is the third rules. Fourth one is the each group should be as large as possible. और थर्ड ग्रुप का मतलब ये है, थर्ड रूल का मतलब ये है कि हमारा जो ग्रुपिंग है वो हम कितनी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, मतलब हम 16 ग्रुपिंग ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम किसका ग्रुप ले रहे हैं, यहाँ हमने पहले यहाँ 4 का लिया, ठीक, फिर नेक्स्ट हमने इसको 4 लिया, यानी कि हम इसमें ओवरलैप भी कर सकते हैं, राइट। अब इसी चीज को अगर हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करें नेक्स्ट, राइट, तो इसमें देखिए यहाँ क्या किया है, हमने ये 2 ले ली है, फिर नेक्स्ट 2 लिया है, देन अगेन नेक्स्ट 2 लिया है, राइट। यानी ये प्रोसेस हमारा रॉन्ग है, क्योंकि के मैप रूल्स ये कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, हम कितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा ग्रुप ले सके, हमें प्रायोरिटी उसकी देनी पड़ती है, राइट। फिफ्थ वन इज द ईच सेल कंटेनिंग one must be at least one group. Each cell containing one must be in each cell group. अगर हमने यहाँ देखिए यहाँ ग्रुपिंग की, यहाँ सबसे पहले 2 की ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सिंगल भी है, ठीक है, तो हम यहाँ ये पे कर लेते हैं। यहाँ 2 तरीके से हो सकता है, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, और या फिर अगर हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है तो हमने फर्स्ट इसकी ऐसी ग्रुपिंग कर दी, और सेकेंड हमने क्या की, एक सिंगल आइसोलेट, मतलब एक ग्रुप के लिए कम से कम एक 1 का होना, मतलब एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन एटलीस्ट 1 ग्रुप, मतलब 1 का एक ग्रुप में होना वो बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, राइट। नेक्स्ट इज दी सिक्स्थ वन इज दी ग्रुप में ओवरलैप। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ग्रुप ओवरलैप हो सकते हैं, राइट। जैसे कि ये देखिए, ये हमने फर्स्ट वन क्या ले लिया, 4 का ग्रुपिंग कर ली, फिर हमने इसको क्या किया है, अगेन यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग की है, तो यानी ये ओवरलैप हो रहा है, तो ये कंडीशन हमारा सही है, ये फुलफिल होता है। लेकिन हमने इसी चीज को अगर हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया सारी चीजों को, तो ये हमारा क्या होगा, ग्रुप्स नॉट ओवरलैपिंग, मतलब ये रॉन्ग है, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग को करनी है और ओवरलैप भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप में रैप राउंड द टेबल। तो 7th रूल हमारा ये कहता है कि the leftmost cell in a row may be grouped with the rightmost cell and the top cell in a column may be grouped with the bottom cell, right? तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप में रैप राउंड दी टेबल, यानी कि अगर हम ग्रुपिंग करते हैं, पहले तो हम ग्रुपिंग ऐसे करते थे, ठीक है, हम ग्रुपिंग ऐसे भी करते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे वंस की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें ग्रुपिंग, हमने ये कॉर्नर ले लिया और हमने ये कॉर्नर ले लिया, तो हमारी 4 की ग्रुपिंग हो गई, राइट। या फिर हमने ये कॉर्नर लिया, ये कॉर्नर लिया, ये लिया और ये लिया, ठीक है। तो ग्रुपिंग हमारी इस तरीके से भी हो सकती है कि मतलब हम ये लास्ट वाला भी ले सकते हैं और ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो 7th वन इज द ग्रुप में बी रैप राउंड एंड द लास्ट rule is there should be few group as possible as long this is does not contradict any of the previous rules, right। तो ये अगेन है, इसमें किस तरीके से अगेन वही हमने किया है, 4 की ग्रुपिंग की है, अगेन 4 की ग्रुपिंग की है और ओवरलैप किया है हमें ज्यादा से ज्यादा, और इस तरीके से नहीं करना है कि हमें पार्ट्स में करना है, राइट। तो ये हमारे 8 रूल्स थे एंड द समरी इज दिस कि नो जीरो अलाउडेड, no diagonals provided, only power of 2 numbers of cells in a group, each group. Next one is the group should be as large as possible. Next again, everyone must be in at least one group, overlapping allowed it, wraparound allowed it, and the last is the fewest number of groups allowed it. Thank you.